न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल सोमवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति में दिखाई दी जब वह बर्नपुर के रहमत नगर इलाके की नई बस्ती में घिर गई। रहमत नगर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। अग्निमित्रा यहां एक बूथ का दौरा करने गई थी, लेकिन अभी वह गाड़ी से उतरी भी नहीं थी कि चारों तरफ से लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी गाड़ी को लक्ष्य कर पत्थर चलाए गए। कुछ ऐसा ही आरोप अग्निमित्रा पॉल ने लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अपने बचाव के लिए उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाया। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान ने मौके पर पहुंचकर अग्निमित्रा पॉल को निकाला। वहीं जवानों ने इस दौरान लोगों को खदेड़ा, कहीं कहीं पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई लोगों से केंद्रीय बलों के जवानों की बहस भी हुई। आगे साइड जी मैदान आगे साइड जी मैदान पोलिंग बूथ पे ये घर के लोग हैं, अब क्या मानिएगा? कहाँ से अब जानते हैं हम लोग को? घर के बच्चे को मानिएगा? ये बच्चे हैं, क्या किया ये? क्या किया? क्या पूछो उनके पास? अब चुप जाइए तो क्या करते हैं? बात तो बढ़ाना चाहते आप लोग? हम लोग काबू पे, हम लोग काबू के पीछे नहीं लगा, ये पीछे नहीं लगा, दौड़ा 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 रन 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 हम जा रहा मैं जा रहा हूँ चार आदमी इधर बैठे, बाकी सब भागो। चार आदमी बैठे उधर भागो। चलो चलो भिड़ा जाओ। हाँ ठीक है जी भाई, दौड़ो भाई दौड़ो। अपने मीडिया से बात करते हुए आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की आज ऐसी स्थिति कर दी है कि बीजेपी कैंडिडेट होने के नाते मेरा अल्पसंख्यक बहुल इलाके में स्थित बूथ पर जाना भी मुश्किल हो गया है। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को केवल वोट के लिए यूज किया है और उन्हें उकसावे में रखा है, उनके लिए कुछ नहीं किया है।
ঘোরাঘুরি করছে আরেকজনকে নিয়ে। যখন আমার কাছে বলেছে দিদি ও এক্স কাউন্সিলে ঘোরাঘুরি করছে, এখন ধরতে গিয়ে বলছে পালিয়ে গেছে তখন। আর পাশের লোকটা বলছে আমি তো তোকে দেখতে পাই না, ওই জন্য ওনাকে নিয়ে এসেছি। এক্স কাউন্সিলের ভেতরে কি করছিলেন দিদি? ওই করিডোরটাতে ঘরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করছে, আমি তো জানি না ও এক্স কাউন্সিলার। আমি বেরিয়ে আসতে না পারছি, আমার সার্টিফিকেটটা বলছি দিদি এক্স কাউন্সিলের ভেতরে ঢুকে বসলাম। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেন এসে কি বললো তারা? না আমি এখানে আমার ভোট হয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, কথা বলছে। উনি তো এখানকার ভোটারই নয়। ভোটারই নয়, তার সাথে যে এসছে চোখে দেখতে পাচ্ছে, বলছে না আমি তো দেখতে পাই না, ওই জন্য ওনাকে নিয়ে এসছি। এমন মিথ্যাবাদীর দল, এমন মিথ্যাবাদীর দল, মানে কতক্ষণ ধরে আছে ভিতরে কে জানে, আর কি কি কুকুরতে করেছে ভেতরে চাইবা কে জানে। দেখলেন তো আপনারা যে ইয়ে করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। এটা নিয়ে কি আপনি এক্ষুনি বলবো, এক্ষুনি ওনাকে জানাবো, এক্ষুনি আমি এতে দিল্লি আমাদের স্টেটের সিইওকে জানাবো, চিফ ইলেকশন অফিসার। ভেতরে ঢুকে ঘরে ঘরে যাচ্ছে, ঘোরাঘুরি করছে, প্যাসেজ করছে। অ্যাবসলিউটলি। সকাল থেকে তো আপনারা দেখছেন, প্রতিটা জায়গাতে ঘটনাগুলো দেখছেন তো কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানায়, আজকে ভোটের দিনে যে ইলেকশনের আমাদের ইলেকশন উৎসব যেটা আমরা বলি, সেখানে ওনাকে নিচ লেভেলে নামতে হচ্ছে, এত নিচু স্তরে নামতে হচ্ছে, সেখানে পাঠার মাংস খাওয়াতে হচ্ছে ভোট কেনার জন্য। কাউন্সিলরকে নামিয়ে ওখানে ভেতরে বুথের মধ্যে ইল্লিগাল কাজ করছে, ভোট দেওয়া হয়ে গেছে তার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। আর নাটক তো যেমন নেত্রী নাটক করে তেমন তার সাকরের, বলে আমি চোখে দেখতে পাই না। মানে অবাক হয়ে যাই আমি এদের ডেসপারেশন দেখে, কি ডেসপারেট, যাতে ভোট পাওয়ার জন্য কি ডেসপারেট। সেম ধিক্কার জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, এইভাবে জিততে পারবেন না। আসানসোল সাউথ বিধানসভা আমি জিতে গেছি অলরেডি, আপনি জিততে পারবেন না। মাংস ভাত খাওয়াতে হয় না, 500 টাকা দেবো বলে মিথ্যে কথাও বলতে হয় না। আমাদের মানুষ, বাংলার মানুষ কত সুস্থ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভোট দিচ্ছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. আর আমাদের ওদিকে আসলে আমরা বলছি আমাদের মাঠে बैठा हुआ कुछ नहीं बोल रहे लोग। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जब बहुचर्चित सीट नंदीग्राम में मतदान हुआ था, तो एक आईपीएस रैंक के पुलिस अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आंख में आंख मिलाकर बातें करते हुए देखा गया था। अब ऐसा ही नजारा आसनसोल दक्षिण सीट के लिए सोमवार को हुए मतदान के दौरान देखा गया। बर्नपुर के शांतिनगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर एम मंडल ने तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष को सीधे सीधे जवाब दिया, और तो और उनके साथ अधिक लोग रहने के कारण बात करने से भी इनकार कर दिया। কি উনি 3-4 জায়গায় শুধু গ্যাদারিং করছে, বুথ ক্যাপচারিং এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট, এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট কথা বলছি না, ইনাদের খারান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নেম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে, এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট, এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট কথা বলছি না, ইনাদের খারান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নেম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে, ওকে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি চুপ করুন, ঠিক আছে? আপনি আগে এদের গ্যালারি সরান, আপনি চালাইয়েগা, আপনি চালাইয়েগা, हम लोग नहीं सुनेंगे। कौन है ऑफिसर?
सायोनी एक फिल्म अभिनेत्री है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में उन्हें एक पुलिस अधिकारी की कड़ाई से पेश आने का अनुभव शायद पहली बार मिला हो। दरअसल शांतिनगर हाई स्कूल में बने बूथ में वोटरों को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावित करने की शिकायत मिलने पर तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष वहां पहुंची थी, लेकिन उस समय उनके साथ काफी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे और यह चुनाव नियम के विरुद्ध था। इसे देखकर ही उक्त पुलिस अधिकारी भड़क गए थे। उसने सायोनी को लोगों को हटाने को कहा, लेकिन इस बीच सायोनी ने ऐसा कुछ कहा कि पुलिस अधिकारी ने सख्ती दिखा दी। উনি 3-4 জায়গায় শুধু গ্যাদারিং করছে, বুথ ক্যাপচারিং এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট, এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট কথা বলছি না, ইনাদের খালান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নেম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে, এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট, এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট কথা বলছি না, ইনাদের খালান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নেম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে, ঠিক আছে, আপনি চুপ করুন। ঠিক আছে, আপনি আগে এদের গ্যালারি সরান, তারপর চালাইয়েগা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रानीगंज में भी मतदान के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल न केवल बहुत सक्रिय रहे बल्कि बहुत सख्ती भी बरत रहे थे। ऐसा ही कुछ नजारा आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानीगंज में 238 नंबर बूथ पर दिखाई दिया। यहाँ इस बूथ के बाहर ही तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक बूथ कैंप लगाया गया था, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस कैंप को वहाँ से हटाने को कहा था, क्योंकि यह बूथ के 200 मीटर के दायरे में पड़ रहा था। लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता जब बूथ हटाने से इनकार करते हुए केंद्रीय बलों के जवानों से उलझ गए तो फिर से वही हुआ जो लग रहा था। आरोप है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस अस्थायी बूथ में रखे टेबल कुर्सियों को इधर उधर फेंक दिया। तृणमूल कार्यकर्ताओं को सख्ती कर वहां से हटा दिया, लेकिन केंद्रीय बलों के जाने के बाद फिर तृणमूल कार्यकर्ता आ धमके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल।
वैसे तो आसनसोल दुर्गापुर की सभी सीटों के नतीजों को लेकर आम लोगों में उत्सुकता है, लेकिन आसनसोल उत्तर सीट पर सबकी नजर जमी हुई है कि इस सीट से गुरु जीतेगा या शागिर्द। गुरु यानी मलय घटक और शागिर्द यानी कृष्णेंदु मुखर्जी। दरअसल आसनसोल उत्तर से तृणमूल के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके मद्देनजर मलय घटक ने इस बार जमकर चुनाव प्रचार किया था। सोमवार को उन्होंने आसनसोल के चिलेडांगा के करनानी स्कूल में बने बूथ में जाकर मतदान किया। सुबह वो आसमानी रंग के कुर्ते और सफेद रंग के पैजामा पहनकर वोट डालने आए थे। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है और केंद्रीय बल भी बीजेपी के कहने पर ही काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे एजेंट को धमका रही है। बीजेपी कैंडिडेट ভোটের ভিতরে ঢুকে ঢুকে তাদেরকে ফেটলো কি বলছেন যারা পোলিং এজেন্ট বসে আছে বা অন্যান্য যারা এটা কি সর্বত্রই হচ্ছে? কি নাম তো এইসব নানা রকম এটা কি সর্বত্রই হচ্ছে? এই একটা বুথে প্রথম কমপ্লেন কি বলছেন বিজেপি এজেন্ট বিজেপি প্রার্থী তখন ক্যান্ডিডেট ছিল, আপনি দেখলেন এরকম কিছু? আমার সাথে দেখা হয়নি। আমি যখন ভিতরে ঢুকলাম তখন সমস্ত এজেন্টরাই কমপ্লেন করলো। আপনি এই বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করছেন নির্বাচন আপাতত পোলিং অফিসারকে ভাই বুমটা নিচে নাও, এটা কারা আছে? এটা কি সর্বত্রই হচ্ছে নাকি? আমি তো এই বুথে পেলাম কমপ্লেনটা, নিশ্চয়ই সর্ব ওভারঅল এখানে এখনো পর্যন্ত কিরকম ভোট চলছে, ইভিএম বা কোনো রকম অশান্তির কিছু? অনেক কিছু ইভিএম খারাপ, তাই সকাল থেকে গোটা 30 ইভিএম খারাপ ছিল। এখনো অনেকগুলো ইভিএম ঠিক হয়নি। বুথ নম্বর 33 ঠিক হয়নি, 107 ঠিক হয়নি, 123 ঠিক হয়নি। जब मलय घटक अपना वोट डालने आए थे तो उसी दौरान बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन दोनों में बातचीत तो दूर देखा देखी भी नहीं हुई। कृष्णेंदु को शिकायत मिली थी कि बीजेपी एजेंट को तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। मुखर्जी ने कहा कि आज तक किसी पार्टी ने यहां अपना एजेंट नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी ने महिला एजेंट दिया है। इसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपना वोट आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में जाकर दिया। हालांकि मशीन खराब होने के कारण उन्हें 1 घंटे तक वोट देने के लिए इंतजार करना पड़ा। সামান্য প্রবলেম ছিল, বেশ খানিক 40 মিনিট মতন ডিলে হয়েছে। সবাই দাঁড়িয়েছিল, আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ হয়েছিল। ইভিএম এর বিভ্রাট ছিল, দেখলেন আপনারা সবাই। একটু অসুবিধা টেকনিক্যালি হয় প্রথম দিকে, ঠিক আছে। এটা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো সমস্যা এখনো হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় ইভিএম এর প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আরোকে আমরা জানাচ্ছি। ঠিকঠাক এখন কতগুলো জায়গায় করতে আরো 2-3 জায়গায় এরকম পেয়েছি। কিছু জায়গায় বুথ এজেন্টদের একটু অসুবিধা হচ্ছিল সামান্য, ঠিক আছে, ওভারকাম করা গেছে। সব আমাদের সমস্ত জায়গায় ঠিকঠাক এখনো পর্যন্ত পিসফুল কোনো না। অশান্তি হবে না আশঙ্কা করছি, অশান্তি হবে না। অশান্তি আমি চাইবো যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে এই যে আনন্দ, এই উৎসব, গণতন্ত্রের উৎসবে সবাই সামিল হবে। সবাইকে এটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাইছি, সবাই পিসফুল ভোট হোক, শান্তিপূর্ণভাবে আনন্দের সাথে সবাই এসে ভোট দিক। কোথাও আপনাদের কর্মীদেরকে ভয় দেখানো বা সাধারণ ভোটার, এটা খুব কমন ফ্যাক্টর। এটা আমার এই জায়গাটা 281 আলাদা না, গোটা পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের ভয় দেখানো, বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখানো, এটা চলছে। এটা আমাদের এটা ইয়ে না, আমরা এগুলোকে ওভারকাম করছি। এগুলোকে নিয়েই হচ্ছে চলা, ঠিক আছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमको खत्म करके गाड़ी में चढ़ेंगे और 300 बूथ है मेरा। सर प्लीज हमको आप हम लोग और भी जगह गए हैं। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने आरोप लगाया कि कन्यापुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में उनके लोगों ने मारपीट की है। मुखर्जी घटना की खबर सुनकर कन्यापुर के एक बूथ पर पहुंचे थे, लेकिन जब वो बूथ पर पहुंचे तो वहाँ पहले से मौजूद केंद्रीय बलों के जवानों के साथ उनकी बहस शुरू हो गयी। इस बूथ पर तैनात केंद्रीय बलों के एक अधिकारी ने कृष्णेंदु मुखर्जी को बूथ परिसर से बाहर जाने को कहा। उस समय कृष्णेंदु मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहकर मीडिया से अपनी बात जारी रखी, लेकिन उक्त ऑफिसर ने उन्हें फिर से बाहर जाने को कहा। लेकिन इस बीच कृष्णेंदु के सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बल सीआईएसएफ के जवान भी उक्त अधिकारी से उलझते हुए दिखाई दिए। কথা জানিয়েছে, একই সঙ্গে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন যে যাতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা যায়। আরো একবার কথা বলার চেষ্টা করবো। বাবু क्लियर है, कैंपेनिंग नहीं हो रहा। आप पीछे करो, आप प्लीज अदरवाइज কর্মী কার্যকর্তা প্রিয়জিৎ
আর পিন্টু মুখার্জি, দুজন যদি এই গ্রামেরই ছেলে। ওরা এসে এখানে ঘুরছিল, এখানে ঘোরবার সময় হঠাৎ করে हम निकल जाएगा, हमको प्लीज हम बाइट दे रहा प्लीज। asking you to leave politely. You have to campaign beyond 200. अरे गलत शब्द का यूज कर रहे हैं सर आप, मैं आपको टोक रहा हूँ, शब्द आप गलत यूज कर रहे हैं। Please sir, आप येलो बुक पढ़ चाहिए सर। Please हम बाइट दे रहा, मेरा लड़का चोट हुआ, मेरा आदमी है, ठीक है ना, आप उसको निकालो, उसको निकालो, आप तो निकल नहीं रहा। आप डायरेक्ट प्रोटेक्टिव से बात नहीं कर सकते, आप हमारे असिस्टेंट कमांडर हमारे जो आईसी है उनसे बात कीजिए। बहरहाल आखिर कृष्णेंदु मुखर्जी बूथ से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में हमला किया गया है। अगर स्थिति और तनावपूर्ण होती है तो इसके लिए तृणमूल जिम्मेवार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल उत्तर उपद्रव वाली जगह है और यहाँ कैसे काबू रखना है ये हम जानते हैं। আমাদের দুজন কার্যকর্তা তাদেরকে 25-30 জন মিলে এখানে মারা হয়, কোনো কারণ ছাড়া বিজেপি করার অপরাধে রাস্তায় ফেলে মারা হয়। এই জিনিসটার তীব্র প্রতিবাদ আমরা করছি। সকাল থেকে আমি চেয়েছি এটা পিসফুল ইলেকশন হোক, গণতন্ত্রের উৎসব, মানুষ খুব শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের উৎসবে যোগদান করুক। কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমি দেখছি এরকমভাবে প্ররোচিত করা হচ্ছে, বারবার অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এরপর যদি এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দায়ী থাকবেন। উৎপল সিনহার নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে থেকে উৎপল সিনহা মেরেছে এই ছেলেগুলোকে, ওখানকার তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট। অবশ্যই আমি জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি, সবাইকে জানিয়েছি। আমি নিজেও খুঁজছি উৎপল সিনহা কোথায়, আমি নিজেও খুঁজে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে ওই রকমই বাতাবরণ আছে, এখানে বাতাবরণে মানুষকে